કેન્સર બીમારી મહામારીની જેમ વધી રહી છે. જેમ પહેલા ઘરોમાં ઓબેસિટી, ડાયાબિટીસ, બીપી, પછી આર્થરાઇટિસ, આસ્થમા અને આ ગેસ, કબ્જ, એસિડિટીની જેમ દરેક ઘરમાં કોઈ કુટુંબ આવું નથી આખા હિન્દુસ્તાનમાં જેમાં કેન્સર કોઈને થયું ના હોય. શું કરવાનું? એક તો અમે આ વીટગ્રાસ, એલોવેરા, ગિલોય, તુલસી, નીમ, હળદર એનો જે ઉકાળો છે આ કરીને અને એનો જ્યુસ આપીએ છીએ. એ અદ્ભુત છે, એ રામબાણ છે કેન્સર માટે. તો આ તો વીટગ્રાસ, એલોવેરા, ગળો, તુલસી, નીમ, હળદર, થોડા આદુ, આમાં હની પાણી નાખીને એ 25 થી 50 ml દરેક વસ્તુ લઈને એનું જ્યુસ કાઢીને પી દેવાનો. અને આ જ્યુસની સાથે સાથે પછી લીલી ભાજી એ લોહાની જે કઢાઈ છે ને એમાં શેકવાનું. એલ્યુમિનિયમ આ ઘરથી બહાર મૂકી દેવાનું. લોહા કે આ ચાંદી તો બહુ સારી હોય, બહુ પવિત્ર પણ એ છે અને એનો અસર પણ બહુ મોટો થાય છે. અને આ તો માટીના વાસણ એ તો ગુજરાતમાં પણ બનાવીને મારે પાસે લોકો મોકલ્યા છે કે ગુજરાતમાં પણ બનાવે છે આખા દેશમાં. અને આ એના વાસણ નહીં તો મિટ્ટીના વાસણ. 5 વસ્તુઓ બંધ કરવી પડશે. આ સફેદ આ રાઈસ, સફેદ નમક, સફેદ મેદા, સફેદ ચીની અને આ કલરલેસ, કોઈ સ્વાદ નહીં, કોઈ ગંધ નહીં અને એમાં કોઈ ગુણ નહીં એવું છે આ રિફાઇન્ડ ઓઇલ. જેમાં કોઈ ગંધ ના હોય, કોઈ ટેસ્ટ ના હોય, કોઈ કલર ના હોય, આવું રિફાઇન્ડ ઓઇલ એ મૂકી દેવાનું. નેચરલ ઓઇલ ખાવાનું, વર્જિન ઓઇલ જેને કહીએ. અને તો ગાયનું ઘી ખાજો અને એનાથી જ હવન કરજો. એ જે હવન છે ને કર્કટેશ રીતે અમે હવન કરીએ છીએ. અને યોગ કરીને, યોગમાં ખાસ કરીને પ્રાણાયામ કરીને અમે મોટા મોટા રોગોને મટાડે છે. આ કર્કટેશ ટી કેન્સર માટે એક વિશેષ સામગ્રી અમે તૈયાર કરી છે. આ કર્કટેશ ટી, એનાથી આ કર્કટેશ ટીની સામગ્રી અહીંયા મૂકેલી છે. અને આ જ સામગ્રી આ યજ્ઞકુંડમાં આવી રીતે મૂકીને અને એનાથી હવન કરવાનું. અને એને પછી એમાં ભસ્ત્રિકા, કપાલભાતિ, અનુલોમ વિલોમ 1 ઘંટા કરવું પડે. ફેફસાનો કેન્સર હોય તો 1 ઘંટા ભસ્ત્રિકા. બાકી આખા શરીરમાં કોઈ જગ્યાએ કેન્સર હોય તો કપાલભાતિ, અનુલોમ વિલોમ 1 ઘંટા. અને આ કરીને જે મટાડીને બેસ્યા છે એના તમે અનુભવ સાંભળશો તો તમારા મનમાં પણ હોપ જાગશે. નહીં તો માણસ કેન્સરનું નામ સાંભળીને જ હું તો મરી જઈશ આવો વિચાર મનમાં આવી જશે. તો જે કેન્સરને મટાડીને બેસ્યા છે એનાથી પ્રેરણા લઈને બીજા પણ યોગ કરવા લાગશે. એટલા માટે આ 5 પ્રાણાયામો ભસ્ત્રિકા, કપાલભાતિ, અનુલોમ વિલોમ કરતા કરતા એ જ મેન છે. પછી ભ્રામરી ઉદ્ગીત કરવાનું, સૂક્ષ્મ એમ કરવાનું, જેનાથી જેટલા થઈ જાય આસનો કરી દેવાના. મેન તો આ પ્રાણાયામ છે. અને ઉપચાર એ પણ બતાવીશ. સૌથી પહેલા એ સરલાબેન અને પાર્વતી એ તો બંને તો કેન્સરથી મુક્ત થઈ ગયા છે. कब से हुआ था सरला? स्वामी जी, मुझे पिछले साल से कैंसर था. 7 गांठें आई थी ब्रेस्ट में. कहाँ टेस्ट करवाया था? मैंने पहले मैदांता में करवाया, फिर चिरंजीवी हॉस्पिटल में करवाया था. तो अब मुझे 6 गांठें मैंने 1 घंटा कपालभाति, अनुलोम विलोम करके मैंने कर लिया. हाँ जी, घर पे कर लिया था. और गौमूत्र भी पीती थी, सारी मतलब मेडिसिन खाते थे. हाँ जी, वीटग्रास, एलोवेरा, हाँ जी, सब कुछ जैसे दवाई बता रखी थी वहाँ के डॉक्टर ने. सिस्टोग्रीट है और ये करक्यूमिन का काचना, ये करती थी. हाँ जी, और ये हवन करती थी. हाँ जी, हवन 5 महीने से करती थी. और खाने पीने में भी बिल्कुल बाहर का कुछ नहीं, सेंधा नमक वगैरह सब, चावल सब कुछ बंद था. और सारे बर्तन में सारे स्टील के बर्तन हैं, कोई भी एल्युमिनियम यूज नहीं करती हूँ घर पे. प्लास्टिक बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया. लोहे की कढ़ाई में ही खाना बनाती थी. हाँ, ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा. इसने बताओ, जो बताते हैं कुछ लोग उसका पूरा ध्यान करते, कुछ तो ऐसे ही सोचते हैं तो ठीक है बाबा जी बताते रहते हैं. तेल भी
हर तरीका का जो आपने बनाया है नेचुरल। नेचुरल सारा सरसों तेल का जैसे तेल, तिल का तेल, हाँ जी, नारियल का नारियल का, मूंगफली का, सूरजमुखी का, तेल और- नेचुरल सारे तेल लाके एक दिन वो तेल में, दूसरे दिन दूसरे तेल में, ऐसे एक एक रिफाइंड ऑयल बंद कर दिया। सब कुछ बंद। सरसों का तेल भी मतलब बंद, अपना पतंजलि का जो है वो यूज करती हूँ कभी कभी। चलो, बहुत बहुत आशीर्वाद। इसने तो बहुत बड़ी प्रेरणा पाली। बस जोरदार अभिनंदन इस छोरी का। कितनी उम्र है बेटा? 41। ये किसी में परिवार में था किसी को पहले? हाँ जी, मेरी सास को हुआ था ये 3 साल पहले, उनको जॉन्डिस था। लेकिन और सास से तो नहीं आता, माँ नहीं। से, माँ से या नानी से, उधर से आ सकता है। हाँ जी, परिवार में उनको नहीं था? उनको इतना 4th स्टेज का था। और मैं वहाँ पे मैदानता में एडमिट कराई थी, तो उन्होंने कहा दिया 2-3 घंटे या 2-4 दिन रुके, मतलब जिएगी और घर पे ही सेवा करो। लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं माने, वो पतंजलि योगपीठ आए, उन्होंने वहाँ से दवाई पूरा लेके गए। वहाँ से 3 महीने में 17% बच गया था। लेकिन उनका क्या हुआ कि वो खा नहीं पाती थी, खाट में से उठ नहीं पाती थी। ओ हो, मतलब 70-80% ठीक हो गया था। हाँ जी। कितने दिन में? 3 महीने के अंदर। 3 महीने के अंदर ही उनका अन्न बिल्कुल बंद किया था। और यही व्हीट ग्रास गाढ़ा बना बना के मतलब मेरे हस्बैंड देते रहते थे। चलो, जेनेटिकली भी कैंसर हो रहा है और बाकी पोल्यूशन और न जाने क्या क्या, कई बार तो पता ही नहीं लगता किस कारण से हो गया, हो जाता है। चलो, लेकिन इसने अपने आप को बचा लिया, सरला ने। हाँ जी। सास माँ भी प्रेरणा बनी। लोग कह दिया था कि अब तो ये 2-3 दिन ही जिएगी, उसने भी फिर भी मैंने 70-80% ठीक हाँ कर जी 3 महीने दिवाई थी मैंने। दिया। जी, आगे देना। प्रणाम बाबा जी। बाबा जी, हमको एक दर्द उठा यहाँ पे बाबा जी, लीवर में, यहाँ पे पेट में दर्द उठा। यहाँ पे दर्द उठा। इतना कस के उठा कि पूरा मसौड़ी, मेरा घर है शर्मा, तो वहाँ के डॉक्टर बुलाया गया तो दवा पूरा मिला, दर्द नहीं कम हुआ। तो पटना लाया गया, तो पटना ठाकुर विजय प्रताप जो हैं वो 1 महीने, सब डॉक्टर जितना बड़े हैं बाबा जी, ठाकुर विजय प्रताप हैं, DK श्रीवास्तव हैं, नरेंद्र कुमार हैं, 1 महीना रख के मैंने 15-20 लाख से कम खर्चा नहीं हुआ बाबा जी। ए राम राम, इतना खर्चा कर लिया था? सब डॉक्टर अलग अलग से जांच करवाते थे। फिर VK अग्रवाल एक है लीवर के स्पेशलिस्ट, तो वो रखे हमको 1.5 साल, अलग से रूम लेके रहते थे। तो वहाँ वो जूस बने एलोपैथ दवा से बाबा जी हमको सत्यानाश हो गया, बहुत खर्च हुआ बाबा जी। पैसा बर्बाद हुआ तो अलग। लास्ट में आए तो एक है पार्क में पतंजलि का एक जिला प्रभारी थे, वो योग की अनाउंस कर कक्षा रहे लगाते थे। जी, तो वो अनाउंस किए कि आज है नाला रोड में मथी है कुछ होना था, तो वहाँ हमको ले गया सब। वहाँ गए बाबा जी, तो अजीत भैया ने हमको बताए और दवा शुरू कर दिए। उस दिन से बाबा जी हम दिन भर मतलब ऑफिस में अब काम मिल गया है मेरे को, ऑफिस में भी बैठते हैं तो अनुलोम विलोम करते रहते हैं बाबा जी। और सुबह का अच्छा लगाते हैं, 3 बजे से उठ के पूजा पाठ करके 5 बजे से 7 बजे तक हम नाला रोड में सबको सिखाते। सबको योग सिखाते हैं। सब लोग माता जी कहते हैं और सब पैर पूजने आते हैं मेरे को बाबा और जी। तेरे कितने दिन में ठीक हो गया था? 3 महीने में हम दवा 3 छोड़- महीने में लीवर कैंसर। जी। लेकिन ये दिन भर किया अनुलोम विलोम और सुबह शाम कपाल भाती। अभी भी घर में बाराती भी आएगा लेकिन हम योग नहीं छोड़ते हैं बाबा जी। कुछ भी हो जाए, शादी ब्याह बारात कुछ भी आए। घर में अभी भी लीवर कैंसर के लिए सर्व कप, कायाकल्प, लिवोग्रिट, लिवामृत और ये सिस्टोग्रिट, खाली पेट और खाने के बाद करक्यूमिन गोल्ड, वृद्धि बाधिका, काचनार, बस। और ये बाकी जूस है, बीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी। और खाने पीने में कच्चा, सलाद, ये छोटे छोटे परिवर्तन करने से। और आँख में भी मासा की तरह हो गया था, बढ़ते बढ़ते और पुतली पर काला वाला पर चढ़ गया था बाबा जी। अब हमको मासा ठीक हो गया और चश्मा उतार के भी पढ़ लेते हैं बाबा जी। चलो, बहुत आशीर्वाद। अगली बहन को देना, पीछे उनको दो, डॉक्टर साहब को दो। हाँ? ये इन्होंने तो बहुत अनुभव किया है। स्वामी जी के प्रणाम। अपना नाम भी बोलो डॉक्टर हम साहब। डॉक्टर श्रीनिवास गुप्ता। एक दिव्या बोल के एक पेशेंट आए थे, उसको 20 साल है। उसका हमारे पास आने के पहले एक लेफ्ट ओवरी के ट्यूमर था। गायनेकोलॉजिस्ट ने बताया था सर्जरी करे। सर्जरी करने के बाद राइट ओवरी में फिर ट्यूमर आ गए। फिर हमारे पास आया, डॉक्टर साहब क्या करना है? फिर लेफ्ट तो ऑलरेडी ऑपरेशन हो गए,
राइट भी ऑपरेशन करने से हमारा बेटी लाइफ लॉन्ग बच्चे नहीं, हमारा यूट्रस ओवरी नहीं निकालने से बच्चा नहीं हो सकता, क्या करना। फिर हम बोले पहला हम शुरू करें, सिस्टोग्रिड शुरू कर दिए, अनुलोम विलोम कपालभाति ये शुरू कर डॉक्टर दिए। साहब होम्योपैथी के डॉक्टर हैं और मेरे शिष्य हो गए। हाँ। अब ये क्या करते हैं, सब आयुर्वेद का औषधि उन्होंने सीख लिया, हाँ। योग सीख लिया, नेचुरोपैथी सब सीख लिया। अब होम्योपैथी के साथ ये योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी का, इसका भी इंटीग्रेटेड पैथी का यूज करते हैं। यूज कर रहे हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। और हम बहुत स्टडी कर रहे हैं। तो उसका डिटर्जेंट कितने दिन में ठीक हो गया? उसको अराउंड 3 महीने में ठीक कर दिया। 3 फिर महीने पहले में स्कैनिंग करने के बाद फिर उसका सेम गायनेकोलॉजिस्ट को जाके बता दिया, ओ पहले नहीं था, स्कैनिंग रिपोर्ट रॉन्ग है बल्कि बोला। फिर से हम बहुत पेशेंट्स को हम रिकॉर्ड करके क्लिनिक में लगा दिया। और स्वामी जी बहुत लोग डिटर्जेंट्स यूज करते हैं, डिटर्जेंट्स में बहुत केमिकल्स रहता है। हम बोले पूरा माता जो उनको बोलते हैं अभी, वो डिटर्जेंट्स में बहुत केमिकल्स रहता है, उससे भी कितना भी वॉश करने से भी थोड़ा 2%, 3% थोड़ा केमिकल रहता। इसलिए पूरा हमारा ये सिस्टर पतंजलि मदर का को बोलते हैं सुपर पूरा विश्वास हर्बल बा। डिटर्जेंट यूज करो, लेमन डिटर्जेंट यूज करो, सो दैट केमिकल्स यूज करने से जितना भी साफ करने से भी इसका थोड़ा परसेंटेज बर्तनों का रहता, वो बर्तनों को अपन खाने से अपना बॉडी में जाता, वो भी वन ऑफ द कॉज ऑफ द कैंसर। थोड़ा थोड़ा असर रहता है। स्लोली इवन वॉशिंग कपड़ा को भी आप लोग, हमारा सजेशन है केमिकल्स यूज मत करो, हर्बल वाला यूज करो, पतंजलि का यूज करो। थैंक यू स्वामी जी, बहुत आशीर्वाद बहुत डॉक्टर। बहुत शुक्रिया स्वामी जी। अब ये राख नीम नींबू से बनाया हुआ, इससे हाथ भी खराब नहीं होते और बर्तनों में जहर भी नहीं घुलेगा। तो एक एक करके इसने, राजबाला ने भी अभी हाथ तो काफी हल्का कर लिया। हाँ? कितना हल्का हो गया राजबाला तेरा? पहले बहुत भारी था। बताओ। करीब अब से 1.5 गुना हो गया। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी मेरा 1 साल से गांठ थी, घर वालों से मैंने कहा कि मैं योग कर लूंगा, मेरा ऑपरेशन नहीं करवाना। इन्होंने मेरा जबरदस्ती ऑपरेशन करवा दिया बाबा जी पिछली साल। उसके बाद ऑपरेशन होने के 2 महीने बाद स्वेलिंग आई थी बाबा जी। मैंने डॉक्टर से कहा कि ये स्वेलिंग कैसे जाएगी, ये तो हाथ ऐसे ही रहेगा, इसको ऊपर रखना है। मैंने बहुत बोला इसका कोई इलाज तो बताइए, इसका कोई इलाज नहीं है दुनिया में। फिर बाबा जी हमारी भांजी थी, उसका 2nd स्टेज का गले में कैंसर था, वो मुझसे मिलने आई 3-4 महीने के बाद। उसने कहा कि मामी आपने ऑपरेशन नहीं करवाना था। मैं पतंजलि गई थी, मेरा गले का कैंसर ठीक हुआ था। वहाँ ले क्या बाबा नाम है जी, उसका नाम है, वैसे तो रेखा है बाबा जी, रेखा। सुसिया कहते हैं घर पे। तो रेखा ने ठीक कर लिया गले का हाँ, कैंसर? गले का 2nd स्टेज का कैंसर ओहो। बाबा जी। फिर मुझे वे अगस्त में पतंजलि लेकर आई थी बाबा जी। उसके बाद मैंने डॉक्टर से कहा कि मैं बाबा जी के पास चली जाऊं, उन्होंने मना कर दिया। घर वाले ये डर गए कि अगवई अंग्रेजी दवाई के साथ देसी दवाई नहीं खानी है, फिर भी जबरदस्ती ले आई। जब से बाबा जी मैं योगा प्राणायाम 3-4 घंटे से कर रही हूँ, मेरा हाथ काफी अच्छा हो गया है बाबा जी। और जो गांठ है वो ये कुछ पतली गांठ पड़ी? है, इतना फोड़ा था बाबा जी, वो बढ़ता था। मैंने कहा डॉक्टर साहब से कि मेरा फोड़ा में जलन है। बाबा जी अनदेखी करते रहे, कुछ नहीं कहा। बाबा जी आपके पास हम आ नहीं सके 3-4 महीने से। अब 15 दिन से यहाँ आई हूँ, तब से जलन बंद है बाबा जी। मुझे पूरी तरह से ठीक कर दीजिए बाबा जी। मैं आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। अब बताओ क्या इसको बाबा जी मैं ठीक हो जाऊंगी अच्छी तरह से? हो जाएगी। तो हाँ, अब देखो इसको जलन होती है तो और कुछ दिखता ही नहीं, इसको सुबह से शाम तक बस यही दिखता है कि ये मेरी जलन कैसे ठीक हो जाए। हाँ बाबा जी। अब इसके ऊपर सेक करेंगे ठंडा गरम, और उसके जो है पूरा लेप करेंगे उसके ऊपर, और सारी शुद्धिकरण करेंगे, तेरा पंचकर्मा करेंगे पूरा शुद्धिकरण के लिए। तो बाबा जी डॉक्टर बस्ती होगी तेरी, बस्ती होती है रोज बाबा जी। बस्ती रोज होगी। हाँ जी। त्रिफला और गोधन अर्क से वो लेना। तेरा ये 1-1 घंटा सुबह दोपहर शाम कपाल भाती, और 1-1 घंटा अनुलोम विलोम 3 टाइम करना शुरू कर दो। और बाबा तो कोई जी इतना था, इतना रह गया ये काम नहीं, पूरा निकल जाएगा। हाँ, लीच लगवानी है बाबा जी। लीच उसके ऊपर नहीं लगेगी, जब ऊपर उसमें जो है थोड़ा उसका साइड में लगाएंगे, जहाँ है ना उससे थोड़ी दूर, जैसे यहाँ चूची के पास है, हाँ तो इससे 4-6 अंगुल दूर लगा देंगे। ठीक है? बाबा जी यहाँ तो ब्रेस्ट ऑपरेशन हो चुका है, यहाँ गांठ हो हाँ, गई वो है। साइड में है ना, तो थोड़ा हाँ। नीचे लगा देंगे। ठीक है जैसे बाबा जी। यहाँ गांठ है हाँ तो उससे 4-6 इंच दूर लगा देंगे।
ठीक तो है उसका बाबा जो उसकी नेगेटिव एनर्जी को शक कर लेती, खींच लेती है। चलो अगली बहन को देना, बाबा जी प्लीज मेरी रिपोर्ट देख देख लेंगे। तेरे को क्या था? स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन बंदन। मैं बहुत लंबे टाइम से 89 से करीब मेरी बैकबोन में पेन था और स्किन डिसीज थी करीब 85 से, जो कि 23-24 साल तक मैंने बहुत अधिक होम्योपैथिक दवाई ली। आयुर्वेदिक भी पहले ली थी जब तक पतंजलि से नहीं जुड़ी थी, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया था। दवाई खाते रहते थे, बन जाता था। मेरे हाथों से पूरे समय ब्लड निकलता रहता था, दाने दाने थे पूरे हाथों में। और बैकबोन में इतना दर्द था कि डॉक्टर्स ये कहते थे कि अगर आप झुक कर साबुन भी उठाओगे नहाते हुए तो आपको नहीं उठानी है। दोनों बच्चे पढ़ने वाले, घर में सारा काम, ये सब पॉसिबल नहीं था। लेकिन फिर भी 24-25 साल दवाई के सहारे, मेरे पास 5 MRI हैं, जयपुर, आगरा, अलीगढ़ और हाथरस में मैं रही मुरादाबाद से, जिसका कि कोई भी रिजल्ट नहीं मिला था। दवाई खाते रहते थे तो ठीक था। अभी मैं 2004 में पहले पतंजलि आई थी जब फेस 1 बना हुआ था, केवल वहां से दवाई ली थी। और अब मैं काफी लंबे टाइम से अपने संगठन से जुड़ी हुई हूँ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्य कार्यकारिणी सदस्य भी हूँ। अब कमर ठीक कर ली? जी बिल्कुल सारे। अब मैं शीर्षासन, चक्र आसन, भूमि नमन आसन सारा कुछ करती हूँ। भूमि नमन आसन तो बड़ा कठिन है। जी कर लेती हूँ स्वामी जी। करके दिखा, अगली को दे दे माइक। जिसको कहते थे कि साबुन की टिकिया भी नहीं उठाना है, तो बड़ी है। अब वो पूरी झुक रही है तो बच्चों की तरह कर रही है और शीर्षासन कर लेती है। क्या बात है। ओम स्वामी जी, मेरे को 2013 में अपना ब्लड जाने लगा था हमारे, तो डॉक्टर मंसूर बताया तो उसने कहा डायरेक्ट उदयपुर ले जाओ इसको। डायरेक्ट उदयपुर ले गया तो वहाँ जाके भर्ती कर लिया उस महंगा अस्पताल में। 1.5 लाख 2 लाख लगा उधर। फिर वहाँ से किया कि इसकी किडनी खराब हो गई। गीतांजलि में किडनी खराब होगी तो किडनी में ये हो गया, किडनी निकालनी पड़ेगी। मैं घबरा गई, मैं क्यों मेरी किडनी नहीं निकालनी। तो कौन सा हॉस्पिटल में? गीतांजलि। हाँ, वहाँ पे भर्ती कराया था। जब उससे कि किडनी खराब होगी, इसकी किडनी निकालनी पड़ेगी। तो किडनी में क्यों, अभी मेरी किडनी निकले मैं मर जाऊंगी। तो किडनी मरेगी मरे तो नहीं की, फिर किडनी एक ही रहेगी, इससे एक से ही जिंदा रहना है। तो वो निकाल दी और 8 साल हो गए, फिर कुछ नहीं हुआ ना। 8 साल बाद फिर अपना ब्लड आने लगा कब से। तो हाँ, तो नीचे के बाद ऊपर ये। हाँ, तो फिर वहाँ अहमदाबाद ले गया, वहाँ राजस्थानी हॉस्पिटल में। बायोप्सी करवाई? हाँ, तो उसमें पता लगा कैंसर है। हाँ, उसमें पता लगा कि कैंसर है। तो उसने या लिख दी गोली 1000, मतलब 30,000 की महीने की गोली लिख दी। क्यों दे दिया? हाँ, वो बाल निकल गए मेरे। हाँ, हाथ पाँव में छाले हो गए पूरे। हाथ पाँव में, अंदर शरीर में सब हाँ, छाले। सब छाले इससे छाले। गोरी ले नहीं सकूं, गोरी लाऊं ने मेरा ऐसा वो ने जूस पिलाता तो जूस भी निकल जाता वो। ओए राम राम। 1 महीना 2 महीना से हाथ से इधर उधर कमाते हैं। फिर मैंने वो गोली छोड़ दी। गोली योग करना शुरू कर दिया? हाँ, योग थोड़ा बहुत करती, वो ज्यादा नहीं करती। तो और दवाई क्या क्या ली? वीट ग्रास लिया? हाँ, ये फिर बाद में 2 साल हो गया। फिर मेरी लड़की की शादी हुई तो उसमें मैं बीमार हो गई। तो फिर वहीं ले गया तो वहाँ यही हुआ। फिर वो गोली छोड़ी ना। अभी अगस्त में मैं आई थी, पर उधर से आने नहीं दिया। तो उधर वहाँ बाबा जी ने सिखाया कि आप तो यही करो। तो मैं 6 महीना थी ये करी, मेरे को आराम मिला। अब जलन बंद हो गई? हाँ, जलन तो कुछ नहीं होती, जाना था कुछ नहीं। सुबह सुबह ये होता ब्लड बस। अब ये भी बंद हो जाएगा। अब औषधि भी पूरी करना। हाँ, यज्ञ चिकित्सा, योग चिकित्सा, नेचुरोपैथी का खाना पीना, औषध और योग पूरा करना, तेरा कैंसर पूरा ठीक हो जाएगा। योग भले कम करती हूँ, बाकी ये सब कुछ ना योग भी पूरा करना। वो टीके से बेहोश हो गई थी, उससे भी वैक्सीन का लगाया कोरोना का, उससे बेहोश। और इतनी कमजोर सी को ऊपर से ठोक देते हैं। वो ब्लड मेरा बहुत कम है। परिवार वाले आगे मर गई है तो 3 घंटे है, अब गई ऊपर। तो 6 घंटे में वहाँ अहमदाबाद ले गए। वहाँ जाके तो यमलोक से वापस लौट के आई। हाँ, वापस आई। सबने आशा छोड़ दी थी कि अब नहीं जिएगी, अब तो मरेगा। पर वहाँ मैं बाटल चढ़ती ने ये करती
बाटल में अनुलोम विलोम कर रही थी। बाटल में भी अगर ओमलोम लोग भी करती। जब मरने को होते हैं तब करते हैं, ये भी वैसे कम करती थी, जब मरने को हो रही थी तब करने लगी। हाँ, नहीं करती तो सही, पर मेरे को टाइम नहीं मिलता है तो कम करती। अभी टाइम पूरा देना रे भाई, अब तेरे को योगी करना और कोई काम नहीं करना। चलो, और पिछले उसको देना बहन को। जी ओम बाबा जी, करो, कपाल भाती अनुलोम विलोम कर लो। मेरे को ब्लड लीवर कैंसर है। लीवर? हाँ जी, शुरू में उल्टी हुई थी तो मेदांता में चेक करवाया, उन्होंने स्टेंट बता दिया। उल्टी पानी भी नहीं पचता था मेरे को बिल्कुल भी। फिर बोले कि इनके तो स्टेंट डलेगा जब कुछ होगा। फिर पहला स्टेंट हमने SMS में डलवाया जयपुर। हाँ। फिर उसके 2 महीना चले, फिर 2 महीना बाद फिर वो बंद हो गया। फिर खाने वाली नलकी में दूसरी नलकी डली, फिर कुछ फायदा पड़ा बाबा। फिर बोले कि चलो ये ले ऐसा एम्स से कीमो चली 12 और आपकी तो शुरू से ही ये गोमूत्र लेती हूँ खाली पेट हल्दी डाल के, और ये गेहूं का ज्वारा, गिलोय, तुलसी, नीम, ये सारी चीज 2 साल हो गए बाबा, एक दिन भी नहीं छोड़ी है। और मेरे 12 कीमो लगी, एक भी बाल नहीं गिरा मेरा। हाँ, ये क्यों साइड इफेक्ट से बच गया, मरने से बच गया? हाँ, नहीं छाले हुए, नहीं कुछ हुए। वैसे मुंह का स्वाद तो थोड़ी कुछ टाइम के लिए चला गया था, पर ये अब क्या हाल है? अब तो ठीक हूँ बाबा, पर अब ये होता है, दर्द होता है कालजे पे, बुखार होता है, ये बुखार और ये और पीलिया होता है। पीलिया 10 बताया, डॉक्टर से चेक करवाया। सर्वकल्प, क्वाथ, लिवोग्रिट, लिवामृत ये जरूर लेनी है, जो आज बता रहे ना, सर्वकल्प, लिवोग्रिट, लिवामृत, ये डॉक्टर लिख देंगे आपको ना। अच्छा, इसको जरूर ले लेना। अगली बहन को देना, उसको कहाँ का है? लीवर का कैंसर, पेट का कैंसर बहुत हो रहा है आजकल। जी ओम बाबा जी, मेरे को ना ब्रेस्ट कैंसर है, उससे मेरा लीवर में भी पहुंच गया है। ये राम राम। तो उन्होंने मेरे को ऑपरेशन का बोला हुआ है कि आपने ऑपरेशन करवाना है और ब्रेस्ट रिमूव करवाना है, तो मैं वो नहीं करवाना चाहती बाबा जी, मैं इसलिए यहीं पर आई हूँ। ब्रेस्ट से फिर लीवर में आ गया तो फिर ब्रेस्ट भी निकाल देंगे, लीवर भी हाँ निकाल जी, देंगे। लीवर भी निकाल देंगे, उन्होंने ये भी बोला कि लीवर भी निकाल देंगे, तो मैं वो नहीं करवाना चाहती। मैं सारे योग कर लूंगी, सारा काढ़े पी लूंगी, लेकिन वो नहीं करवाऊंगी। और मैं वैसे बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम ठीक हूँ। सबसे पहले क्या हुआ था? बस एक छोटी सी गांठ हुई थी ब्रेस्ट में, बस वो डॉक्टर किसी ने मेरे को बताया नहीं कि आपको ये टेस्ट करवा लीजिए, आपको कुछ पता लगेगा। महीना भर मेरा ऐसे ही निकल गया। जब 1 महीने के बाद टेस्ट करवाया तो वो कैंसर की गांठ निकली है। चलो, अब तेरी बिना कोई उपद्रव किए तेरे को ठीक होना है तो सुबह से शाम तक अखंड योग करना शुरू कर। सुबह, दोपहर, शाम योग कर, काढ़े पी, खान पान ठीक कर ले, हवन कर, ठीक हो जाएगा। हाँ जी, अब इतना विश्वास है तो ठीक। हाँ जी, हाँ जी, विश्वास करके ही यहाँ आए हैं। हस्बैंड ने बोला नहीं ऑपरेशन करवाना, सिर्फ बाबा जी के पास ही जाना है। क्या नाम है? मेरा नाम संगीता है, लुधियाना से आए हैं। चलो, कैंसर तो पंजाब में तो ऐसे भी ज्यादा हो रहा है, पंजाब में तो बहुत ज्यादा है, पूरे देश में। वहाँ केमिकल वाली खेती सबसे ज्यादा हुई ना, उसका असर हो। हाँ जी, चलो, आशीर्वाद संगीता। तो देखो कि मेरे को ब्रेस्ट नहीं कटवानी और लीवर नहीं कटवाना, तो ब्रेस्ट, लीवर बचाना है तो योग तो करना पड़ेगा। तो फक्त प्राणायाम थी અને જે ઉપાય બતાયા છે, આ ઉપાયો થી તમે કેન્સરને પણ મટાડી શકો છો। ઢેરને તો મારે ખાતી ખગડાવવાના છે, તો બધા અમારા જ હતા। આપણે કેમ પેલા બસમાં બેસતા તો રૂમાલ મૂકીને જગ્યા કરી દેતા હતા, અને મમ્મીએ એમાં જગ્યા રાખી મૂકી છે। બધા જ લોકો ઈચ્છતા હોય છે કે કોઈ ચૂંટાયેલી વ્યક્તિ અથવા તો ભવિષ્યમાં ચૂંટાઈ શકે એવી વ્યક્તિ કોઈ હોય તો એ ચોક્કસપણે પાર્ટીમાં આવે, એટલા માટે એમણે આવું નિવેદન કર્યું છે। કોંગ્રેસ માટે મારા જે વસમાં છે ત્યાં સુધી અમે કોઈ કોંગ્રેસીઓને લેવા માટે તૈયાર નથી। હું તો બોલીશ રાત્રે 8 વાગે ભાજપમાં કોણ થશે ઇન, કોણ થશે આઉટ।